Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all into the video session of Kentuck Publishers. I am going to teach you general science, and for that you need these 4 books. Number 1, the textbook of general science, CSS series, Kentuck Publishers. Number 2, the summer pack. For doing your summer task, you need this book as well. And for having additional activities, you can avail this book, the workbook Science 3. And beside that, you can have a support of resource pack. And these all books are available on the official address of Kentuck Publishers. Dear students, today we are going to start a new chapter, and the name of that chapter is Living Things and Their Environment. My dear students, we studied about living things. Living things कौन सी होती हैं? Living things में हमने पढ़ा था about plants and animals. When we talk about living things, तो it means कि इसके अंदर plants और animals दोनों आ जाते हैं. इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, but before that we need to go through the SLOs, read it and try to understand these SLOs. SLO number 1, define environment. Environment का नाम आप लोग बार बार सुनते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि environment basically कहते किस चीज को है. The second SLO is explain components of environment with example. इससे और क्लियर हो जाएगा कि हम environment के examples भी डिस्कस करें. And the third SLO is differentiate between various types of environments. यानी how many basic types are there? Environment के कितने types हैं? जब types भी हो जाएंगे, so I'm damn sure that it will be more clear to you to understand about environment. The fourth SLO is explain the characteristics of animals and plants which enable them to survive in a particular environment. अब environment जब हम types पढ़ लेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि एक environment दूसरे environment से different होता है, तो वहां के रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स भी डिफरेंट तरीके से वहां पे एडॉप्टेशन करेंगे, अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे. नेक्स्ट SLO इज क्लासिफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट. 3 किस्म के एनिमल्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के खुराक करते हैं, और उन बुनियाद पे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और जो हम डिटेल से पढ़ेंगे. द नेक्स्ट SLO इज डिफरेंशिएट बिटवीन कार्निवोर्स, herbivores and omnivores with the help of examples. जिन 3 ग्रुप्स का मैं जिक्र किया इससे पहले वो ये हैं, कार्निवोर्स, हर्बिवोर्स एंड ओमनिवोर्स. और उसके बाद नेक्स्ट SLO है डिफाइन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. 3 और टर्मिनोलॉजीज आ गई. सो प्यारे बच्चों, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपके लिए नई है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, आपको समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी. The next SLO is explain the importance of producers, consumers and decomposers in a food chain. And the last SLO of this chapter is make a food chain to show the relationship between producers, consumers and decomposers. These are closely connected. किस तरीके से producers प्रोड्यूस करते हैं और उसको कंज्यूमर्स कंज्यूम्स करते हैं, और नाम से जाहिर है डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं. लेट्स गो टू सी दैट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, और थोड़ा बहुत हम पहले एनवायरनमेंट को डिस्कस कर ले. नॉर्मली जब कहीं पे डस्ट हो और या कहीं पे सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी हो, तो हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है. एनवायरनमेंट कभी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे हम पर्टिकुलरली फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. द टर्म एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड
environia, which means surround, to surround. It means surroundings. Simply we can say environment means surrounding in which organisms live. Environment is the sum of all living and non-living things. इसमें living and non-living things दोनों आ जाती है, not only plants and animals. These organisms work in coordination with non-living things to live a balanced life. So we can say that इसमें living things भी आते हैं और living things को abiotic non living things को और biotic living things को कहते हैं. बायो से निकला है, आगे आप लोग बायोलॉजी भी पढ़ोगे प्यारे बच्चों. बायो मीन्स लाइफ, मतलब लिविंग थिंग्स. एबायोटिक क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा. जब भी ए का लफ्ज आएगा आगे आप लोगों को बार बार ये चीजें सामने आएंगी. सो यू मस्ट रिमेंबर कि बायोटिक अगर लाइफ लिविंग थिंग्स के लिए है और उसके साथ ए लग जाए तो वो एंटी हो जाता है. हम यहां पे टेक्स्ट में डिटेल से पढ़ेंगे. सिर्फ यहां मैं आपको बता दूं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एबायोटिक में होते हैं और लिविंग थिंग्स होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स को लिविंग थिंग्स वाले कहते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स, these make non-living physical portion of an environment. The non-living physical portion of environment is called as abiotic. They directly or indirectly affect the living portion of the environment. These includes air, water, sunlight, minerals and soil. So you see, air is non-living, water is non-living, sunlight is non-living, minerals are non-living and soil is non-living. लेकिन हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि वाटर का, एयर का, सनलाइट का, मिनरल्स का और सॉइल का प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ पे बहुत ज्यादा असर होता है. यानी ये जो आपने एयर वगैरह देखे, ये क्या है, ये नॉन लिविंग है और ये जो बायोटिक है ये क्या है, ये लिविंग है. बायोटिक कंपोनेंट्स, these are living part of the environment. The living part of the environment is called as biotic. All living organisms around us are biotic. For example, plants, animals and microorganisms. Microorganisms too. Right. They prepare their food in the environment. Plants. Food कौन prepare करता है? Plants. Or get the food from other organisms, animals, consumers होंगे. These organisms along with abiotic components make up environment. So one thing have got clear. See this one picture. इस picture के अंदर you see living things and you also see non-living things. The water, the soil, the sun, ये सारी चीजें, यानी ये जो चीजें हैं these are abiotic. ये जो living चीजें हैं these are called biotic. लिविंग को बायोटिक फैक्टर कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं और नॉन लिविंग को एबायोटिक. लेकिन दीज आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड. अगर यहां का टेम्परेचर बहुत सख्त तेज हो जाए तो इनको लिविंग वालों को रहना मुश्किल हो जाएगा. अगर यहां से पानी खत्म हो जाए या इसका कंडीशन टेस्ट इतना गंदा हो जाए, इसमें केमिकल्स चले जाएं, तो ये जो लिविंग थिंग्स है ये सारे मर जाएंगे. तो बायोटिक फैक्टर क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा. इसके बाद ये प्लांट्स क्या है, प्लांट्स आर बायोटिक फैक्टर. ये जो आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं, अगर ये वाटर और ये सॉइल खराब हो जाए, एबायोटिक खराब हो जाए, तो वो बायोटिक को भी खराब कर सकता है. माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड एनवायरमेंट किसे कहते हैं. एनवायरमेंट सराउंडिंग्स को कहते हैं. एनवायरमेंट
सराउंडिंग को कहते हैं। और इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। इन दो कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? एबायोटिक, जिसमें एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एंड सॉइल आता है, नॉन लिविंग थिंग्स। एंड द सेकेंड वन इज बायोटिक, इन विच प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये चीजें आती हैं, लिविंग थिंग्स। अब इस एबायोटिक का बहुत बड़ा असर होता है बायोटिक पे, इन्वायरमेंट में, क्योंकि इन्वायरमेंट कहते ही इसी को है कि दो तीन मुख्तलिफ चीजें आपस में इंटरेक्शन के साथ एक जगह पे रह रहे हो, इन्वायरमेंट बना देती है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ योर होमवर्क। ओपन योर बुक एंड समर पैक निकालें और समर पैक में इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, कंपोनेंट्स को जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आज ही सॉल्व कर लो, बिकॉज द सेम यू विल शो टू योर टीचर and you should do it today because tomorrow you will go for another lesson. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.